According to the World Bank report 2006, 275 million people in India depend on forests for their subsistence and cash incomes. Such communities are particularly vulnerable to poverty and impacts of climate change. While ecosystem conservation has assumed greater importance in the context of climate change, the conservation design needs to take into account the needs of the community so that it does not end up excluding them. This is the principle being followed by the RBS Foundation India in a series of projects across the country, covering a range of cultural settings and ecosystem types. RBS Foundation India works with local NGOs for India's most vulnerable, those living in the buffer regions of protected areas and corridors between protected areas. Their work with the communities on enterprises enables development of sustainable livelihood opportunities and access for health and education services, thereby fostering conservation. The Kanha National Park is located in the vast and extensive forest belt of the Satpuras and the Vindhyas. This part of Madhya Pradesh and Chhattisgarh is home to crucial forest and grassland ecosystems along with dense tribal populations. Subsistence agriculture supports food requirements for about 6 to 7 months of the year, leaving the tribal population otherwise dependent on wage labor and the sale of forest produce. जंगल से तो हमारा क्या है काफ़ी मतलब जीविका चलता है इससे लकड़ी भी बेच लेते हैं कुछ महुआ वगैरह भी तेंदुपत्ता कुछ चार वगैरह आंवला वगैरह भी हम लोग लाते हैं। पूरे गाँव ही है हमारे ऐसे है जो बीच बीच में कई लोग संपन्न टाइप के खाने पीने के लिए हो जाता है वो लोग फिर भी वो लोग महीना में या साल में 2-3 बार 4 बार या बेचते रहते हैं। बाकी 90% लोग जो हैं वो हमेशा ही लकड़ी या महुआ है जंगल से कुछ ऐसे चीज़ ला करके अपना जीवन यापन करते हैं। RBS Foundation India, with the Foundation for Ecological Security, has improved farm and non-farm livelihood options of the tribals in the region, reducing vulnerability of local communities and biotic pressure on the forest. We understand that the villagers usually have to go up to 5 kilometers from their village for various livelihood demands. And when they do that, they exert some biotic pressure around. The idea is, and that's what we are working upon, that the pressure should reduce and there is more harmony in their life and their livelihoods. And if that is introduced, the work that they have to do for their livelihood demands should reduce from 5 kilometers to 2 kilometers. An improved method of rice cultivation, the System of Rice Intensification or SRI, has been introduced by the Foundation to improve agricultural yields. The SRI method cultivates rice that produces substantially higher yields with the planting of far fewer seedlings and the use of less water than any traditional methods. पिछले साल मैंने 25 डिसमिल में SRI का खेती किया और उससे मेरे को अच्छा फ़ायदा लगा, इसलिए मैं अभी जो है तो 2 खेतों में लगाने का प्रयास किया हूँ। जो 20 किलो धान बोता था उसमें उत्पादन कम होता था और जो अभी 1 किलो धान मैं वहाँ SRI का खेती कर रहा हूँ उसमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। करीब मैं उसमें 2 बोरा पहले मिलता था देसी पद्धति में, तो अभी जो है तो मैं करीब 5 बोरा
धान वहाँ से मिलता है। अपने देसी विधि में धान उत्पादन होता था, उससे 6 महीने तक मेरे परिवार को पूछता था। और अभी जो है मैं जब से SRI विधि से किया हूँ तब से खाने के लिए 10 महीने के लिए पर्याप्त हो जाता है। With a basket of livelihood options such as poultry farming and piggery, the villagers have improved incomes, reducing their dependence on the forest. जब से हम समिति द्वारा से APS संस्था से जब से हमको समझाए, हम उसके माध्यम से हम फिर मुर्गियाँ 5 मुर्गियों हमको दिए। तो 5 मुर्गियों में कम से कम हमारे 30 अंडे के बाद फिर 18 बच्चे, नुकसान बाढ़ा सहित 18 बच्चे बचे। 18 बच्चे में हम 7 बच्चे बेच दिए। 7 बच्चे हम बेच दिए तो कम से कम 950 के, तो कम से कम लड़के बच्चे के कपड़े के लायक हो गया और लकड़ी के थोड़ा कंट्रोल हो गया। One of the central features of the approach adopted has been the idea of working with communities to enhance community-level management of natural resources, adapting traditional systems of local self-governance and conservation for the purpose. Paryavaran Samitis, comprising of villagers and Gram Sabha members, take crucial decisions on livelihood development and natural resource management. समिति बनाई है, इसमें 11 लोग सदस्य हैं, 5 महिला हैं, 6 पुरुष हैं और जंगल के विकास के लिए जो है इस समिति को बनाई गई है और गांव के विकास के लिए भी इस समिति काम कर रही है। और इसमें कुछ लोग वन विभाग से भी हैं और ये वन विकास समिति अध्यक्ष भी इसमें शामिल है और वन विभाग के ये फॉरेस्ट गार्ड भी इसमें शामिल है। ये भी हमको मदद करती है, इस समिति को मदद करती है और इसके माध्यम से हम लोग जंगल की रखरखाव ये समिति करती है। देश के लोग या माया माया गरे जहाया माया गरे गेट माया टिकस कटा में देख जंगल शेर किला बांधो माया। The Bandhavgarh National Park in central India has a total area of 1,165 square kilometers. In the local tribal communities, many live below the poverty line. ये कोर एरिया के एकदम सट के ये एरिया है, फ्रिंज विलेजेस हैं और सबसे पिछड़ा हुआ विलेजेस जो हैं यही 8 विलेजेस हैं। तो इनका जो डेंजर है, ये फॉरेस्ट में जब जाते हैं तो इनको पता नहीं होता कि कितने अंदर जाना है। अभी तो फॉरेस्ट में जाना इलीगल है, लेकिन जो ये अपना लाइवलीहुड है, जिस दिन बफर जोन डिक्लेयर किया था उसी दिन इनका लाइवलीहुड तो एनहांस किसी ने नहीं किया था। तो लाइवलीहुड तो वही थे, इनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत थी। RBS Foundation India, in partnership with Indian Grameen Services, has established community governance through the creation of multi-tier structures, linkages for finance and markets, leading to sustainable livelihoods. The self-help groups also manage revolving funds, developed to provide small value loans to the community and build linkages with formal financial institutions to enable the enterprise members to access loans for business needs. जो यह महिलाओं के समूह जुड़ा है दीदी, तो यहाँ से हमको कुछ सुविधा जनाता है। ये सुविधा जनाता है कि लोन लेते हैं तो उसमें मुर्गी पालन करते हैं, बीजा के खातिर लेते हैं, फिर उस किस्त आता है, वो किस्त में पैसा देते हैं। भाई अपने से हम माने 10 रुपया बचता करते हैं, बैठ कमाएं, उसको बचा कर करके अपन 2% माने दे दे, किसी को पैसा तो 2% भेज लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे से हमारा एक ही दाल रोटी चल रहा है। It was because of the loan from her SHG that Parvati could start papaya cultivation along with her husband Amritlal Yadav. तो साल भर हो गए, साल माना 2 साल हो गए जब से यही जुड़े हैं समूह में, तब से मतलब टाइम में नहीं मिले, यही ताकत रही थी। भैंसी लैला तो चारा रखिला उतरही गान
हो गए अपन खेत बाड़ी देखें यह काम माही अपने लगे रही थी। अब जंगल जा का मौका नहीं है, न महुआ भी न जाई, न पत्ता टोरे गए ना सो, और न लकड़ी गए। साल भर हो गई लकड़ी के नहीं गए अभी। हाँ यही लगा ला हम तेन का अपन देख रेख में रही आई थी। जैसे NTFP में मैंने बताया कि आपको 20,000 होता है पर ईयर आपका, जो मतलब एक्सट्रीम, जो एकदम ऑप्टिमिस्टिक अगर कैलकुलेशन करें तो, नहीं तो वो 10,000 to 12,000 होता है पर हाउस होल्ड। और उस टाइम में अगर एक एडल्ट मेंबर का 4 एडल्ट मेंबर उसमें लगे रहते हैं तो 10 to 12,000 इनकम करने के लिए 4 एडल्ट मेंबर का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इसके साथ अगर पपीते में ये लगे रहें तो इनको एक साल में आता है 25,000। तो ये भी सीजनल फ्रूट्स ही हैं, सीजनल जो इनकम है। तो ये एक साल को इसको पकड़ रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं, डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है। और पपीते में 10 डेसिमल 50 प्लांट्स अगर पौधा लगाया है तो उसमें हस्बैंड वाइफ ही लग जाते हैं तो काफ़ी है। हाँ ये साल भर को हो गए, माने नर्सरी से लेके साल भर से ज़्यादा नहीं हुए पौधों को, केवल साल भर हुए। यही सीजन में लगाए थे तो साल भर हो गया, माने 10 माह से फल देना शुरू कर दिए हैं। तो अब तैयार हो गए एक दिन में धीरे धीरे से, तो हल्के तैयार होते हैं। तो इसे मानपुर लेके तोड़ के ले गया मानपुर। सुन संगवारी में तोला सुना तो ये संगवारी, सुन संगवारी में तोला सुना तो यार मजा तो आई ना। Moolbati Varmaiya is one of the many who is happy with the change in her village. Partala in the state of Madhya Pradesh has been transformed with the efforts of RBS Foundation India in partnership with the local NGO Watershed Organization Trust. With their work on watershed management, the once drought-prone Partala is today flourishing. पहले जो है लोग बाहर जाते थे हमेशा काम करने के लिए, खेती पर ध्यान नहीं देते थे ज़्यादा, पानी की कमी, हर चीज़ की कमी के कारण। अब है तो जब से ये वसुंधरा कार्यक्रम आया है, जब से समिति बनाया गया, गांव में लोगों को जागरूक किया गया, जब से अब खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पानी का काम करवाए, नाला में कुआं भी खोदे, मेड़बंद धान किए, सही ढंग से अपने खेती को करने की तरीका बताए समझाए। जब से लोग बाग अपने गांव में अच्छा तरीके से समझ चुके हैं उस काम को, तो खेती अच्छे से कर रहे हैं और पानी की कमी नहीं है अभी गांव में। जैसे बायोगैस है, बायोगैस में पहले नहीं जानते थे बायोगैस क्या चीज़ है, ना कभी देखे ना कभी मालूम नहीं था कि क्या है। वो लकड़ी लाना जंगल से, उसी को जलाना, चूल्हा जलाना, तब खाना बनाना, चाहे जितना समय में बने, उसको ध्यान ही नहीं देते थे लोग बाग, जानते च नहीं थे। जब से वाटर आया, इसकी जानकारी मालूम हुआ और बनवाया। जब से मतलब अपने घर की जो गोबर है उसको घोल के डालो और गैस भी बनता है और सही टाइम में खाना भी बन जाता है, लकड़ी की बचत हो जाती है और जो गोबर निकलता है उससे खाद बन जाता है, अपने खेतों में डाल दो। और जब भी जलाना है बायोगैस को, जितना समय जलाना है, जो भी बनाना है, फटाक से चालू कर लो। ये नहीं है कि अब चूल्हा जलाएंगे, लकड़ी जलेगा, जब ही खाना बनेगा। Traditionally, mountain societies had evolved systems of natural resource management based on centuries-old, tried and tested principles of ecological sustainability. Extraction of natural resources was curtailed by traditional codes of conduct rather than enforcement of state laws.
However, with the declining influence of religion on social behavior and the replacement of kinship values and informal institutions, this is no longer viable. RPS Foundation India, along with Appropriate Technology India, has been working in many districts of Uttarakhand to promote local enterprises. The premise that getting economic and managerial control over their natural resources will encourage local communities to support long-term economic and biodiversity conservation goals. जो जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर पार्क है, इसके बफर जोन एरिया में 60 विलेजेस में इंटेंसिवली काम कर रहे हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है, इट्स अबाउट कि जो मैन और वाइल्ड एनिमल हैं उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिनिमाइज करना और अल्टीमेट जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो इशू है उसको एड्रेस करना। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है कि कंजर्वेशन थ्रू एंटरप्राइज डेवलपमेंट, तो वही हमारा रेप्लिकेशन है। जो भी हमारे मॉडल हैं, डेयरी डेवलपमेंट है, बी कीपिंग है, सेरिकल्चर है एंड स्पाइस कल्टीवेशन है, इन्हीं सब मॉडल को हम रेप्लिकेट इस प्रोजेक्ट एरिया में कर रहे हैं। और जो हमारे SSGs हैं, हम लोग 1000 वुमेंस के साथ में काम कर रहे हैं, तो हमारे करीब 100 SSG हैं जिनकी मेंबरशिप है 1000 वुमेन। तो उन 1000 वुमेन में से जो प्रोड्यूसर हैं, कुछ स्पाइस प्रोड्यूसर हैं, कुछ डेयरी प्रोड्यूसर हैं और कुछ लोग हमारे और भी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। Enterprises in dairy, beekeeping and spice cultivation has generated additional livelihood options and reduced dependence on the adjoining forest. आज ही मैंने पहले एक डिब्बा लिया था, उसमें मैंने 5 डिब्बे हो गए मेरे, तो उसमें से 5 डिब्बों में से 2-2 किलो शायद मतलब हर पेटी में से निकलता है। तो अपना यूज के लिए भी करते हैं, थोड़ा बहुत बेचने के लिए भी 120 रुपए किलो बेचते हैं। बस उसके बाद से हमने हल्दी अदरक भी लगाया, तो उसमें भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। 2 क्विंटल मैंने बेचे हैं, 20 किलो मैं लाई हूँ, तो 20 किलो मैंने अपने लिए भी रखा। जैसे हल्दी, ये अदरक है, ये लहसुन है, उसको कोई जानवर नहीं खाता। जैसे हम गेहूँ धान लगाते हैं, उसको सब जानवर खा देते हैं। यही कारण हम ये हल्दी अदरक लगाना चाहते हैं। डेयरी की काम में मतलब जैसे भैंस पाल लिया, गाय पाल ली और फिर मार्केट में दूध सप्लाई करते हैं। तब से हमने मतलब कि मार्केट में बात करी, तो मार्केट में दूध लगाया, फिर दूध के साथ मतलब जो भी आमदनी होती है हमें 9-10 लीटर दूध जाता है। और इस टाइम पे हमको अनुमानित क्या 7,500 के लगभग पर मंथली इनकम होती हैं। तो आगे दूध बढ़ेगा तो और ज़्यादा इनकम होगी। ये पहले जंगलों में चरा लेते थे और अब फिर ईस्ट इंडिया हमको फिर समय समय पे जैसे कि दाना मुहैया कराती हैं और बीज वगैरह देती है, तो हम खेतों में मतलब कि बीज बोते हैं। फिर चाप कट्टा लगवाया उन्होंने, तो चाप कट्टा से हमें यहाँ पे काफ़ी सुविधा होती है। तो गाय के लिए हमें भूसे के साथ मिला के वो दाना बना के खिला देते हैं उसको यहाँ पे, तो काफ़ी राहत मिलती है। अब जंगलों में ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में अपने खेत में ही चारा उगाते हैं। These remote villages have been integrated into a unique community-owned enterprise, transforming a subsistence economy where no alternative existed. The result being villagers producing premium finished products like organic honey and spices for distant high-end markets. In this region, ATI has partnered with Devbhoomi Enterprises, which markets these products made by the rural community. At present, कंपनी के साथ तकरीबन 5000 प्रोड्यूसर्स उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में जुड़े हुए हैं। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग गतिविधि, जिसमें स्पाइसेस, डेयरी, बी कीपिंग्स और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और कंपनी बेसिकली इनका मार्केटिंग करती है। कंपनी का बेसिकली पर्पज़ ये है कि उत्तराखंड जनपद में जितने भी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के रूप में प्रोड्यूसर्स हैं, इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके किस तरीके के इनको एक मार्केट प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट्स है देवभूमि ब्रांड करके बनाया है, जिसको न केवल राज्य बल्कि
राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तकरीबन 60 से 70 रिटेल आउटलेट्स और कुछ उसमें पाइनियर्स जैसे फैब इंडिया, ओबेरॉय होटल्स जो कि एक अपने आप में क्वालिटी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, ऐसी जगह हम अभी सप्लाई करते हैं। Rural livelihoods, biodiversity, ecosystem services, local governance, sustainability and socio-economic development. They are all interconnected. A little care to understand these connections and design programs that work with them goes a long way. The work facilitated by the RBS Foundation India across several Indian states is beginning to make a difference to the economic well-being of several hundred households. If we can provide such solutions to rural Indian communities everywhere, the link between rural poverty and environmental degradation can be broken and a mutually sustaining relationship established in its place.